Good morning, students. How are you all? Welcome to chemistry class. Today we are going to start a new unit number 4, chemical bonding and molecular structure. First of all, I would like to introduce you to the chapter. I'll give a basic introduction. We know it is a known fact, well known fact that matter जो है it is made up of atoms. जो भी मैटर है you have read in your 9th class 10th class that matter is made up of atoms. Under normal conditions except noble gases, जितनी भी noble gases हैं except these noble gases, other elements they do not exist as independent atoms in nature. Like hydrogen, it exists as H2, nitrogen, it exists as N2, oxygen, it exists as O2, chlorine, it exists as Cl2. So, except noble gases like helium, He, neon, Ne, argon, Ar, krypton, Kr, xenon, Xe, radon, Rn. These are the noble gases which exist as independent atoms in nature. We know जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं एज इंडिपेंडेंट एंटिटीज. दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ईदर दे आर ग्रुप और क्लस्टर ऑफ एटम्स ऑफ ईदर सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स जो टुगेदरली दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट. लाइक H2O का अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, H2O जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन and oxygen. They are different atoms, different elements, but under certain conditions of standard temperature and pressure, being a liquid, water क्या है liquid, it shows its characteristic properties. तो similarly there are so many atoms, there are so many polyatomic atoms, there are so many homonuclear polyatomic atoms which exist in nature. Hydrogen, oxygen and chlorine, H2, O2 and Cl2, they are composed of similar kind of atoms. Okay, H2 it consists of hydrogen atoms, oxygen में बेटा only O के atoms होंगे oxygen के, chlorine Cl2 में chlorine के atoms होंगे. इसको बोलते हैं homonuclear diatomic molecule. Homo means same, di means two. होमोन्यूक्लियर जिनका न्यूक्लियस सेम है मीन्स दे आर कंसिस्ट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स. नेक्स्ट इज हेट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. हेट्रोन्यूक्लियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स आर present in that molecule. Diatomic means two atoms will be there, like hydrogen chloride HCl, hydrogen and chlorine, carbon monoxide CO and carbon and oxygen, NO nitrogen and oxygen. Next is homonuclear polyatomic molecule. Homonuclear means it will be composed of same kind of element, same kind of atoms, but they will be more than two atoms. It is not diatomic, it is polyatomic. Like phosphorus, it exists as P4, sulfur it exists as S8 unit. Next is heteronuclear polyatomic molecule. Heteronuclear means there will be different kind of elements present, and polyatomic means there will be more than two atoms. Like example is H3PO4 phosphoric acid. It is composed of 3 atoms of hydrogen, 1 atom of phosphorus and 4 atoms of oxygen. सिमिलरली अगर H2SO4 के एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम्स ऑक्सीजन के हैं. तो ये क्या है हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो ये 4 तरह के मॉलिक्यूल्स हमने स्टडी किए हैं. फर्स्ट इज होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकेंड इज हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, देन होमोन्यूक्लियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड नेक्स्ट इज हेट्रोन्यूक्लियर polyatomic molecule.
अब हमें पता है कि ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स हैं, ये डिफरेंट काइंड्स के आयंस हैं, ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कंबाइन करते हैं, ये कब पॉसिबल है? ओनली when there is some attractive force which can hold these constituent atoms together। अगर उनमें कोई फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है जो उनको टुगेदर बाइंड करके रखता है, then only this combination is possible। तो इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर within a molecule is called a chemical bond। अब chemical bond की formation हो गई, but there are so many questions। ये इससे जो है बहुत सारे questions आते हैं। the first question is कि क्यों atoms combine करते हैं? कुछ atoms combine करते हैं, कुछ atoms combine नहीं करते हैं। There are definite number of atoms in a पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। लाइक हाइड्रोजन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इट इज़ H2, वाई नॉट इट इज़ H3, और वाई नॉट इट इज़ H4, और वाई नॉट इट इज़ H5। मॉलिक्यूल्स होते हैं, देर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग डेफिनेट शेप्स। क्यों होती है डेफिनेट शेप्स मॉलिक्यूल की? और जो फोर्स एग्जिस्ट करता है इन कंबाइनिंग एटम्स में, दिस अट्रैक्टिव फोर्स, उस फोर्स का क्या नेचर है, किस तरह का फोर्स है वो? आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स? तो इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज जो हैं दे वर पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसमें से कुछ थ्योरीज हम अपने इस 11th क्लास के इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। एंड दीज थ्योरीज वर लाइक Cossel-Lewis approach, that was the first approach। then valence shell electron pair repulsion theory हमें पढ़नी है, VSEPR theory। उसके बाद हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कवर करनी है इस चैप्टर में। एंड लास्ट विल कवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस सभी के लिए जो Cossel-Lewis अप्रोच है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो था इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, इनके लिए जो डेवलपमेंट्स थी, जो कंट्रीब्यूशंस थे, जो फर्स्ट था, इट वाज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ लिया है, व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एटम। देन उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एलिमेंट्स का, और पीरियोडिक टेबल। तो ये सब कुछ हम अपने सेकेंड और थर्ड चैप्टर में कवर करके आए हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द बॉन्डिंग, हाउ डज द एलिमेंट्स, हाउ डज द एटम्स दे कंबाइन, व्हाट इज़ द फोर्स विच अट्रैक्ट्स दीज atoms together, what is the force which binds these atoms together। Formation of chemical compounds, it's take place due to combination of atoms of various elements in different ways। बहुत सारे different ways में combine करते हैं atoms, and this I have told you that there were different attempts made to explain all these questions। Now first approach what we have to study is Cossel-Lewis approach to chemical bonding। Lewis जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने क्या इमेजिन किया था, दैट द एटम जो है इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल। कर्नल किसको बोलते हैं? इट इज़ KERNEL। कर्नल इज न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल या आउटर शेल, और जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो न्यूक्लियस होता है, टुगेदर वी कॉल इट एज कर्नल, KERNEL। उनकी आउटर शेल जो होती है उसमें मैक्सिमम एकोमोडेशन होती है, कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की? इट इज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो Cossel-Lewis अप्रोच है, इट वॉज बेसिकली बेस्ड on the electronic concept of atom, that is electronic theory of valency, कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकली एक्टिव हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स केमिकली इनएक्टिव हैं।
उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किया गया था। लाइक नोबल गैसेस में हीलियम है ओनली जो ड्यूप्लेट फॉर्म करता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ड्यूप्लेट फॉर्म करता है। बाकी के सारे जितने भी नोबल गैसेस हैं दे आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। उनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो ये सजेस्ट किया गया था कि ये जो नोबल गैसेस हैं these noble gases they possess the stable electronic configurations, इनकी stable electronic configurations होती हैं। they are having the tendency neither to lose the electrons nor to gain the electrons, their shell is completely filled, इसीलिए ये क्या होते हैं? they are chemically unreactive, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक शेल में, जिनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इफ़ दे विल बी हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होंगे? केमिकली रिएक्टिव, क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट करेंगे, दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करेंगे टू फॉर्म द बॉन्ड्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज़ करेंगे या गेन करेंगे या इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। देन it is said that these atoms, these elements, they are chemically reactive. तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉसल-ल्यूइस अप्रोच क्या था? ऑक्टेट रूल वॉज गिवन। ऑक्टेट रूल क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन विद ईच अदर। अभी मैंने आपको बताया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दे कंबाइन विद ईच अदर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और द ड्यूप्लेट इन केस ऑफ हीलियम। हीलियम अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, और टू अटेन स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अपना नियरेस्ट जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है लाइक लिथियम, बेरिलियम, ये जो है हीलियम का, और हाइड्रोजन जो है ये नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं हीलियम का, और बाकी के जो एलिमेंट्स है दे अटेन देयर स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस configuration. Now the question comes, how do atoms combine? Chemical combination जो होता है it is basically I told you, या तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे या इलेक्ट्रॉन्स जो है म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो इस तरह से केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, हाउ डू एटम्स कंबाइन? क्या मोड्स हैं ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? तो फर्स्ट इज़ by complete transference of one or more electrons from one atom to another। एक एटम जो है वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो उसकी आउटर मोस्ट शेल के जितने वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, वो कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे एटम को, और ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंसी। सेकेंड प्रोसेस है, सेकेंड जो मोड है फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, इट इज़ बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, आपके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम आपस में शेयर करेंगे एंड वी कैन कंप्लीट आवर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। तो दिस इज़ म्यूचुअल शेयरिंग, मीन्स दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, इक्वली द एटम्स आर शेयर्ड, इक्वली द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय द एटम्स, एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड is called covalent bond। अब सेकेंड केस क्या होता है? when the electrons are contributed entirely by one of the atoms, इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट कर रहा है एक एटम लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या कर रहा था? म्यूचुअल शेयरिंग थी, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम डोनेट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, एंटायरली इट विल कंट्रीब्यूट, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स, और इस बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। नेक्स्ट कम्स Lewis symbols, means how do we represent the valence electrons? Electrons जो हैं which are involved in the formation of a molecule, they are outer shell electrons, जो बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही रिप्रेजेंट करते हैं, और
Such outer shell electrons involved in chemical combination are called as valence electrons. जो outer most shell है which are involved in the formation of chemical bond, these electrons are called valence electrons. Inner shell के जो electrons होते हैं they are protected and they are not involved in the combination process, they are not involved in the formation of bonds. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओनली दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड. तो जीएन ल्यूइस ने अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिकन केमिस्ट थे, इन्होंने एक नोटेशन रिप्रेजेंट किया था हाउ टू रिप्रेजेंट द ल्यूइस सिंबल्स. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, क्या प्रेजेंटेशन दिया था कि जो वैलेंस शेल है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको डॉट्स से रिप्रेजेंट करेंगे सराउंडिंग द सिंबल ऑफ द एलिमेंट. लाइक सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो Na इसका सिंबल है और 1 डॉट से रिप्रेजेंट किया है. मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसको रिप्रेजेंट किया है बाय 2 डॉट्स. एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय 3 डॉट्स. सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिप्रेजेंटेड बाय 4 डॉट्स. फॉस्फोरस में 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7 एंड आर्गन 8. तो ये क्या है, ल्यूइस सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही डॉट सिंबल के अराउंड हम रिप्रेजेंट करेंगे. ल्यूइस सिंबल्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक तो नंबर 1 इज़ कि जितने भी डॉट्स प्रेजेंट है सिंबल के अराउंड, जितने डॉट्स लगाए हैं वो हमें क्या बताते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे आउटर मोस्ट शेल में. क्लियर, नंबर 1. और उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उस एलिमेंट की वैलेंसी. इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनकी वैलेंसी कितनी है 1, 2, 3, 4, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, 2, 3 एंड 4. और जिन एलिमेंट्स जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनका क्या है 3, 2, 1 और 0. तो इनकी वैलेंसी कैसे आती है 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट्स. 8 में से माइनस कर देंगे वो हमें क्या दे देगा, उस एलिमेंट की वैलेंसी. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. ये आपने 10th क्लास में भी कवर किया है. हाउ डज द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस. आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर so as to complete their outermost orbits by acquiring 8 electrons or 2 electrons. वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली डोनेट कर देते हैं, कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर देते हैं, ईदर टू अचीव ऑक्टेट और ड्यूप्लेट टू एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. जब बॉन्ड फॉर्म होता है, व्हेन कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, एक एटम कम्प्लीटली डोनेट कर देता है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम को, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड. तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है, लाइक सोडियम क्लोराइड का हम एग्जांपल लेते हैं. सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन कंबाइन करते हैं. Na में क्या है, इट फॉर्म्स Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, ये आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो इस पे क्या आ जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है टू एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लेता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, नेगेटिव आयन. सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव कंबाइन करके फॉर्म करते हैं NaCl, और इनके बीच में जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है इट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अब इलेक्ट्रोवैलेंसी होती क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ किए हैं या गेन किए हैं, इट गिव्स द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट.
और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबर्स। कितने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट हैं वो देता है कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 1। नाउ वील स्टडी अबाउट फैक्टर्स विच गवर्न द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। फर्स्ट कंडीशन इज़ कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करता है विच होल्ड्स द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस टुगेदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।